Hello, very good morning, student. Myself, Sachin Noble, working as assistant professor in State Institute of Pharmaceutical Education and Research, Odisha. Today, we are going to perform the pharmaceutical inorganic chemistry practical. So the aim is to perform identification test for magnesium hydroxide. The experimental setup required to perform the practical apparatus in that measuring cylinder, beaker, test tube, glass rod, chemicals required, ammonia, barium chloride, titan yellow, ammonium chloride, sodium hydroxide, dilute HCl, mercury chloride, etc. So, before proceeding for the procedure, okay, the principle of this identification test is in the identification test are prescribed in the pharmacopoeia, that is for to check the quality of the drug. Okay, so the pharmaceutical aids or any reagent, it requires the test. Okay, it is prescribed according to the Indian pharmacopoeia. So the principle of the different tests is based on reaction of various ions and radicals with specific inorganic or organic reagent. Okay. So different tests have different results, different PPTs. It is depend according to their reaction. Okay. So in the procedure, we have to perform this procedure step by step. So first is a physical test. Okay. So we will perform this physical test by its nature, color, odor. Okay, we also check the solubility, whether it is soluble in water or not, or whether it is soluble in ethanol or not. Okay, so after that, the identification tests are required. Okay, as our aim is to perform identification test for magnesium hydroxide. So this is very important. So in that, first is test A. Okay, so in this, you have to take the 0.5 ml solution of substance, okay, that is being examined, and you have to add the 0.2 ml of 0.1% weight by volume solution of titan yellow and 0.5 ml of 0.1 molar sodium hydroxide. So you will get the red PPT, okay, which is settled at the bottom. So color variation may form it will show the red PPT or some reddish orange. Okay. So next is test B. Okay. So we have to dissolve about 50 mg of substance, okay, in 5 ml of water. In that, you have to add 1 ml of dilute HCl, then 1 ml of barium chloride solution. Okay, you will get white PPT after. Then test B is you have to dissolve the 50 mg of substance in 5 ml of water. Then you have to add 1 to 2 ml of mercury chloride solution. Then you will get the yellow PPT at the last. Okay. Okay. Now we will perform this physical test and identification test step by step. Okay. Let's turn toward the practical section. This is the experimental section for identification of magnesium hydroxide. So in the procedure section, we'll perform the procedure step by step. So we'll first start with the physical test. Okay. So in physical test, we have the different parameters like nature, color, water, insolubility, water, ethanol. So in the physical test, you can see the nature of magnesium hydroxide to be the solid. Okay? So let's say that the test is confirmed for the solid. Okay, and the color is white. Okay. So again, test is confirmed. Then it is again odorless. Okay, so test is very odorless. So for the purpose of solubility, okay, we'll take this other. Small quantity of magnesium hydroxide. I will check the solubility in water. Okay. So you can see it is
easily soluble, okay, in water. Now, next thing, you have to check its solubility in alcohol, that is ethanol. Okay. So, we have already taken this quantity of magnesium hydroxide. Okay. Here is ethanol. We add ethanol in it. So here you can see there is no solubility for the magnesium hydroxide in ethanol. Here it is. In bottom, you can see now, this is for the observation against the physical test. Okay. Now, actual identification test is performed step by step. Okay. Here, so we have to take the 0.5 ml of solution of the magnesium hydroxide. So we have already prepared this solution and taken the 0.5 ml of the neutral slightly acid solution of the magnesium hydroxide. Okay. So we have weighed and taken this magnesium hydroxide and make the solution and measure the 0.5 ml. Okay. And in that, we are going to add 0.2 ml of the title yellow solution. So this is the title yellow solution here you can see. So we add 0.2 ml title yellow solution in the test tube. So you can see here it's the 0.2 ml. Added the 0.2 ml, 0.1% solution of title. And in that again we are going to add 0.5 ml of sodium hydroxide. So the solution is already prepared for the 0.1 molar sodium hydroxide. So we'll again add the 0.5 ml of solution of sodium hydroxide in the flow. It's also 1 ml. Okay. This is our 0.1 molar sodium hydroxide solution. Solution of sodium hydroxide. So we are going to add in the so you can see some red turbidity is developed. Okay. So this is the indication for the presence of the magnesium hydroxide or identification of magnesium hydroxide. You can see the PPT is settled at the bottom. Okay. The color will change from reddish orange. Okay, and at the bottom you can see the slightly PPT is developed and it is slowly settled at the bottom. So
This is one identification test for magnesium hydroxide. The next identification step we give 50 mg of substance that is already read and taken in the test tube. So we have 50 mg of magnesium hydroxide that is going to dissolve in the 5 ml of water. So we can put it here. Limited to 5 ml. So adding potassium sulfate. Next, we have to add the 1 ml of dilute HCl and 1 ml of dilute solution. For it, infinity, added 1 ml of HCl. The dilution. One ml dilute HCl. Added 1 ml of dilute HCl. Then again, we have to add the 1 ml of dilute chloride solution. We have added the barium chloride, 1 ml. This first. So here you can see the white PPT is formed. Okay. So it is the identification of the magnesium hydroxide. It is slowly settling at the bottom. So the next identification test is confirmed for the magnesium hydroxide. So the next test, we have to start with the again magnesium hydroxide. So we have weighed in 50 mg of magnesium hydroxide. It is all in the 5 ml of water. So measure the 5 ml of water. Okay. Aside. And the next reagent we have to add, that is the mercury chloride solution, 1 to 2 ml. Okay. So we add the added with mercury chloride solution. And we will see the PPT settled at the bottom. Observe the PPT as the so
So, with the different identification tests, all the tests is confirmed for the magnesium hydroxide. So we can identify that, we can say that the magnesium hydroxide complies all the tests given according to the Indian Pharmacopoeia. So, as result, you can say that the given magnesium hydroxide must comply all the tests according to the IP. At last, the result after performing the physical test and the different identification test, that is ABC. So we can say that the given sample of magnesium hydroxide was found to comply with the test A, B, and C for identification as per test. Good morning to all. Today we are going to perform our fourth experiment of pharmaceutical inorganic chemistry. And aim of today's experiment is to perform the identification test for ferrous sulfate. So before starting our experiment, I would like to tell you what are identification tests. Identification tests are the tests which are used to verify or confirm the presence of specific element or functional group or compound that may be present in sample. That means हमारे पास जो भी सैंपल होगा उसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या एलिमेंट प्रेजेंट है या कंपाउंड प्रेजेंट है, उसको कंफर्म या वेरीफाई करने के लिए हम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कंडक्ट करेंगे. So next is the compound which we are going to take for today's experiment, and that is ferrous sulfate. Ferrous sulfate is also called iron sulfate, and it is an essential body mineral which is used to treat iron deficiency anemia, that is lack of red blood cells or RBCs. For example, अगर हमारी बॉडी में कभी भी रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है या आयरन की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं अनीमिया, and in that condition we will take ferrous sulfate as medicine which will fulfill the deficiency of iron in our body. So next is the requirements which we are going to need in our today's experiment. In glasswares we will need test tube, glass rod, measuring cylinder, pipette, dropper and beaker. And in chemicals we will need ferrous sulfate crystals, dilute sulfuric acid, dilute hydrochloric acid, phenanthrolene, ceric ammonium sulfate, dilute sodium hydroxide, potassium ferricyanide, potassium ferrocyanide, barium chloride, lead acetate, ammonium acetate, iodine solution and strontium chloride. And next is the procedure. Procedure में हम just identify करेंगे ferrous sulfate को in the form of ferrous ions and sulfate ions. So for that we will separately identify ferrous and sulfate ions, and we are going to conduct certain tests for checking the presence or confirmation of these elements, and let's see that in our experimental portion. These are the various chemicals and glasswares which we are going to use for today's experiment. आज के एक्सपेरिमेंट के लिए हम दो पार्ट्स में कंडक्ट करेंगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट को, दैट इज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर फेरस आयंस एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर सल्फेट आयंस. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंडक्ट करेंगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर फेरस आयन. उसके लिए 5 to 6 टेस्ट प्रेजेंट है जो मैं आपको 1 by 1 बताऊंगी. फॉर परफॉर्मिंग फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ फेरस आयंस वी विल टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ferrous sulfate, or that is to small quantity of salt we will add dilute sulfuric acid and phenanthrolene. And इसमें जो ऑब्जर्वेशन आनी चाहिए that is
रेड कलर प्रोड्यूस होना चाहिए टेस्ट ट्यूब में। सो वी कैन क्लियरली सी दैट टेस्ट ट्यूब में रेड कलर प्रोड्यूस हो गया है एंड वी आर गेटिंग रेड कलर्ड प्रेसिपिटेट्स। So that means iron may be present or ferrous ions may be present in sample. For performing second identification test for ferrous ions, हम उसी सॉल्यूशन में जो हमने फर्स्ट टेस्ट के लिए बनाया था उसी में हम सीरिक अमोनियम सल्फेट ऐड करेंगे एंड इसमें जो कलर चेंज है आपके पास रेड कलर था, that will be discharged or disappear. रेड कलरेशन की डिसअपियरेंस अगर होती है टेस्ट ट्यूब में देन इट विल मीन एज यू कैन सी क्लियरली दैट जो कलर चेंज है दैट हैज़ बिकम रेड टू ब्लू, दैट मीन्स आयरन इज कन्फर्म्ड एंड इट इज प्रेजेंट इन आवर सैंपल। फॉर परफॉर्मिंग थर्ड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर फेरस आयंस हम टेस्ट ट्यूब में सिमिलरली सॉल्ट ऐड करेंगे, पिंच ऑफ सॉल्ट, एंड देन उसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड ऐड करेंगे and finally we will add dilute hydrochloric acid. In this test blue precipitate जो फॉर्म हुए हैं, ब्लू कलर जो टेस्ट ट्यूब में दिख रहा है, that is confirming the presence of ferrous ions. And for performing last test for ferrous ions we will add dilute HCl again and जिसमें precipitates form हुए थे that will become insoluble. And अगर insoluble precipitates form होते हैं that will confirm the presence of ferrous ions. So you can see यहाँ पे insoluble precipitates form हो चुके हैं and that is confirming the presence of ferrous ions. सो नेक्स्ट हम परफॉर्म करेंगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर सल्फेट आयंस। सो फॉर फर्स्ट टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर सल्फेट हम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट लेंगे दैट इज फेरस सल्फेट एंड देन वी विल ऐड वाटर दैट इज डिस्टिल्ड वाटर एंड देन वी विल ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्रॉप वाइज एंड लास्ट में हम ऐड करेंगे बेरियम क्लोराइड एंड इसमें जो ऑब्जर्वेशन है दैट इज़ वाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होने चाहिए एंड वी कैन क्लियरली सी आफ्टर एडिशन ऑफ बेरियम क्लोराइड वाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो गए, टेस्ट ट्यूब का जो कलर है वो चेंज होके वाइट हो गया है एंड दैट मीन्स सल्फेट में बी प्रेजेंट। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर सल्फेट इज वी विल टेक सॉल्ट, pinch of salt in a test tube and then we will add lead acetate in it along with distilled water to make a solution. And in this we will observe white precipitates form होंगे similarly same as first test and we can clearly see white precipitates are formed, that means sulfate may be present. Next identification test for sulfate is that to above solution जो already बना था solution हम उसी में ammonium acetate ऐड करेंगे। We will add ammonium acetate along with sodium hydroxide. And for observation of this test इसमें जो भी प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हुए थे लास्ट टेस्ट में वो डिजॉल्व होने चाहिए एंड इट विल कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट आयंस एज यू कैन क्लियरली सी। इसको थोड़ा सा शेक करना पड़ रहा है सो दैट प्रेसिपिटेट्स विल डिजॉल्व।
We can see that there are no precipitates left in the test tube. So that means sulfate ion is confirmed and it is present in ferrous sulfate. For last identification test of sulfate ion, we will take pinch of salt and then we will add iodine solution in it. And इस टेस्ट में हमें सस्पेंशन ऑफ येलो कलर ऑब्टेन होगी. As you can clearly see, येलो कलर की सस्पेंशन फॉर्म होगी. डेट इज़ 2 layers आर फॉर्म्ड एंड दैट हैज़ कन्फर्म्ड द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट आयंस इन आर सैंपल. सो हमने सभी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ फेरस आयंस एज वेल एज सल्फेट आयंस हमने सभी टेस्ट परफॉर्म किए हैं. एंड वी कैन से दैट द गिवन सैंपल कंटेन्स फेरस केटाइंस एंड सल्फेट एनायंस इन इट. थैंक यू. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ सम ऑफ द इनऑर्गेनिक ड्रग, जिसमें आज हम देखने वाले हैं सोडियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट. तो उसके कुछ तीन टेस्ट करने वाले हैं जो एज पर द आईपी के प्रोसीजर के हिसाब से दिया है. तो फर्स्ट ड्रग इज द सोडियम बाइकार्बोनेट. सोडियम बाइकार्बोनेट ये एक पर्टिकुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एसिड के लिए हम यूज करते हैं. एसिड अगर आइडेंटिफाई करना है तो सोडियम बाइकार्बोनेट का टेस्ट किया जाता है. तो हमको इसमें क्या करना है, तो हम लेंगे डाइल्यूट HCl. तो मैं यहाँ पे 2 to 3 ड्रॉप डाइल्यूट HCl लूंगी, जिसमें अगर मैं सोडियम बाइकार्बोनेट डालती हूँ तो इट गिव्स द इफरवेसेंस. तो ये डाइल्यूट HCl लिया है मैंने. कोई भी HCl ले सकते हो आप जो डाइल्यूट फॉर्म है, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एनी टाइप ऑफ द एसिड. और फिर हम इसमें डालेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट. तो देखिए इफरवेसेंस फॉर्म हो रहे हैं. vigorous reaction will be occurred and there is a formation of effervescence. तो effervescence means there is the presence of acid भी बोल सकते हैं, या सोडियम बाइकार्बोनेट एसिड के साथ vigorous effervescence शो करता है. तो ये हमारा फर्स्ट टेस्ट है. सेकंड टेस्ट के लिए हम लेने वाले हैं, फर्स्ट हम लेंगे अ सब्सटेंस विच एग्जामिन इन अ वाटर. तो हम लेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट और जिसको 2 to 3 ml वाटर में डिजोल्व करेंगे. तो मैं मिनिमम क्वांटिटी लूंगी, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी गिन के नहीं लेना है और इसको वाटर में डिजोल्व करना है. ठीक है, सफिशिएंट क्वांटिटी जितना आप सॉलिड लेते हो उसको वाटर में डिजोल्व करने के लिए जितना वाटर लगेगा तो आपको लेके उसको डिजोल्व करना है. देन हम इसमें मैग्नीशियम सल्फेट डालेंगे. सेकंड हम इसमें क्या डालने वाले हैं, मैग्नीशियम सल्फेट. जब आप मैग्नीशियम सल्फेट डालोगे तो क्या होने वाला है, सोल्यूशन वाटर है और मैग्नीशियम सल्फेट, तो वो सम ऑफ द वाटर में डिजोल्व होगा या मैग्नीशियम सल्फेट के क्रिस्टल बॉटम में डिपॉजिट होंगे. ठीक है, देखिए क्या है, व्हाइटिश कलर का सॉल्यूशन है और नीचे मैग्नीशियम सल्फेट के क्रिस्टल दिख रहे हैं. अगर आप इसको बॉईल करते हो तो अगर मैं इसको यहाँ पे बॉईल करूंगी, लाइट हीटिंग करना है विद द हेल्प ऑफ आप होल्डर लेना है आपको. मैं स्लाइड हीटिंग कर रही हूँ. तो आप ऑब्जर्व करोगे तो बॉटम में थोड़े से व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर आपको दिखेंगे. देखिए व्हाइट क्रिस्टल दिख रहे हैं. ठीक है, तो ये हुआ हमारा सेकंड टेस्ट. क्या किया हमने, सोडियम बाइकार्बोनेट लिया, पर्टिकुलर सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर में डिजोल्व किया एंड देन मैग्नीशियम सल्फेट डाले. पहले मैग्नीशियम सल्फेट डिजोल्व नहीं हो रहा था तो कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही थी. हमने हीट किया थोड़ा सा तो उसमें सम ऑफ द प्रेसिपिटेट विल बी क्रिएटेड. व्हाइटिश कलर का मिल्की वो सोल्यूशन क्रिएट हो रहा है. अगर आप उसको ठंडा करते हो तो ठंडा होने के बाद हम देखेंगे कि और क्रिस्टल उसमें रिएक्शन हुए क्या नहीं. नेक्स्ट हम टेस्ट करने वाले हैं अगेन सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए, जिसमें हम लेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट सैंपल. ठीक है, इसको मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगी. देन मुझे इसमें डालना है पोटेशियम कार्बोनेट. क्या किया मैंने, कंपाउंड लिया, वाटर में डिसॉल्व किया और उसमें मैं 2 to 3 ड्रॉप पोटेशियम कार्बोनेट डालने वाली हूँ. पोटेशियम कार्बोनेट डालने के बाद देखिए सोल्यूशन विल बी ट्रांसपेरेंट. सम ऑफ द क्वांटिटी जो सैंपल है वो थोड़ा सा डिसॉल्व होने की कोशिश कर रहा है और सोल्यूशन विल बी ट्रांसपेरेंट.
ठीक है, अभी हम इसमें डालेंगे पोटेशियम एंटीमोनेट सॉल्यूशन। पोटेशियम एंटीमोनेट सॉल्यूशन डालने के बाद हमको इसको हीट करना है। पोटेशियम एंटीमोनेट सॉल्यूशन डालेंगे एंड देन वी हीट इट। ये भी देखिए ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन क्रिएट हुआ है। क्या क्या डाला, कंपाउंड वाटर, फिर हमने इसमें डाला है पोटेशियम कार्बोनेट और फिर हम डालेंगे 4 ml फ्रेशली प्रिपेयर्ड पोटेशियम एंटीमोनेट सॉल्यूशन। ठीक है, एंड देन बॉईल। थोड़ा सा हम इसको बॉईल करेंगे। वैसे भी ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है, कोई भी क्रिस्टल नहीं है तो इजीली वो बॉईल होगा। ऐसा ही नहीं कि क्रिस्टल को हमको ये करना है। बॉईल करने के बाद हमको इसको आइस कोल्ड वाटर में रखना है या आइस में रखना है, इसको ठंडा करना है। ये हमने बॉईल किया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आइस लिया है सम ऑफ द, थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें, मतलब इसका आइस कोल्ड वाटर क्रिएट हो जाएगा। और इसमें मैं टेस्ट ट्यूब को स्टैंड बाय रखने वाली हूँ। ठीक है, ये मैं आपको 5 मिनट के बाद दिखाती हूँ कि उसमें क्रिस्टल हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, हमने क्या किया है, सॉल्यूशन कंपाउंड लिया, उसमें वाटर डाला, फिर हमने उसमें डाला पोटेशियम कार्बोनेट, अच्छे से शेक किया लेकिन कुछ भी प्रेसिपिटेट नहीं थे। फिर हमने उसमें डाला है पोटेशियम एंटीमोनेट सॉल्यूशन एंड देन उसको बॉईल किया है। बॉईल करने के बाद हमने इसको किस में रखा है, आइस कूल्ड वाटर में रखा है। तो ये है 3 टेस्ट जो हम सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए परफॉर्म करते हैं। इसमें भी बिल्कुल माइन्यूट है, थोड़ा सा हम रखते हैं। जब तक मैं मैग्नीशियम सल्फेट के टेस्ट बताती हूँ उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको देखेंगे कि सच में उसमें क्रिस्टल आए कि नहीं आए। नेक्स्ट हम कंपाउंड आइडेंटिफाई करने वाले हैं मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट के लिए पहला टेस्ट हमको क्या करना है, कंपाउंड प्लस वाटर लेना है और हम उसमें डालेंगे डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन। तो कंपाउंड और वाटर को अच्छे से डिसॉल्व कर लेना है सबसे पहले। तो मैंने कंपाउंड लिया, ठीक है, एंड इसमें वाटर में इसको पहले अच्छे से डिसॉल्व करूंगी और फिर मैं जैसे ही अमोनिया डालूंगी तो उसमें क्रिस्टल रीअपियर्स होने वाले हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट के थोड़े क्रिस्टल है वो डिसॉल्व नहीं होते, तो इसलिए मैं थोड़ा सा हीटिंग करूंगी। विद द हीटिंग उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करूंगी। सम मोर वाटर में थोड़ा ऐड कर लेती हूँ। देखिए ये डिसॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, फिर इसमें हम क्या डालेंगे, अमोनिया सॉल्यूशन डालेंगे। ये डाइल्यूट अमोनिया है, मैं डाल रही हूँ। देखिए पहला सॉल्यूशन कैसे था, ट्रांसपेरेंट मास था और जैसे मैंने अमोनिया डाला तो देखिए उसका व्हाइटिश कलर हुआ है। सम मोर अमोनिया सॉल्यूशन और ऐड कर सकते हैं। देखिए दिख रहा है टर्बिडिटी, दैट इज मीन बाय द व्हाइट प्रेसिपिटेट। दैट इज द टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। कंपाउंड प्लस वाटर, उसको हीट किया एंड अमोनिया डाला तो एक्सेस ऑफ प्रेसिपिटेट विल बी अ फॉर्म। ये जो एक्सेस ऑफ प्रेसिपिटेट है हम डिसॉल्व कर सकते हैं बाय एडिंग अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे मेरा अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। मैं इतना सॉल्यूशन नहीं लूंगी, थोड़ा सा आधा लूंगी जिससे आपको इजीली टेस्ट समझ में आएगा और रिएजेंट विल बी रिएक्टिव। तो ये थोड़ा सा सॉल्यूशन मैंने लिया जिसमें मैं क्या डालने वाली हूँ, अमोनियम क्लोराइड डालने वाली हूँ। जैसे ही अमोनियम क्लोराइड डाला देखो प्रेसिपिटेट पूरी डिसॉल्व हो गई है। व्हाइटिश सॉल्यूशन था हमारा, पूरी डिसॉल्व हो गई है। अमोनिया कंटेनिंग सॉल्यूशन है तो बर्नर से थोड़े से दूर आपको रखना है। अमोनिया इजीली कैच द फायर। फिर हम इसमें डालेंगे डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट जिससे प्रेसिपिटेट रीअपियर होगा। डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, यस, मैं इसमें डाल रही हूँ डाइसोडियम क्या बोला है, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। देखिए प्रेसिपिटेट रीअपियर हुआ है, दिख रहा है आपको, ब्लैकिश में अच्छे से दिखेगा। ठीक है, क्या क्या किया हमने, सबसे पहले हमने क्या लिया, सैंपल लिया, सैंपल को वाटर में डिसॉल्व किया। डिसॉल्व करने के बाद उसको हीट किया, विद द हीटिंग हमने डिसॉल्व किया। फिर हमने उसमें अमोनिया डाला। अमोनिया डालने के जिससे प्रेसिपिटेट आए, प्रेसिपिटेट को हमको डिसअपियर करना था तो इसमें हमने अमोनियम क्लोराइड डाला। जैसे ही आप अमोनियम क्लोराइड डालते हो तो प्रेसिपिटेट पूरी डिसॉल्व हो जाती है
एंड देन उसमें से हाफ ऑफ द सॉल्यूशन हमने लिया और उसमें हमने क्या डाला, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, और उसकी वजह से प्रेसिपिटेट जो है वो रीअपियर्स हुआ। दैट इज द टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट टेस्ट परफॉर्म करेंगे टिटैन के साथ। पहले हमको क्या करना है, कंपाउंड लेना है और उसको वाटर में डिसॉल्व करके द सॉल्यूशन बिकम एसिडिक। तो मैं यहाँ पे अगेन लूंगी मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट के क्रिस्टल होने के कारण जब ऑन द डिसोल्यूशन हमको उसको हीट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट लिया, ठीक है, थोड़ा सा, और वाटर डाल के उसको मैं थोड़ा हीट करूंगी, जिससे क्या होगा, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बनेगा और मैग्नीशियम सल्फेट इज इजीली डिसॉल्व्ड। देन हम इसमें डालेंगे, इसको एसिडिफाइड करना है हमको। सबसे पहले तो ये सॉल्यूशन को स्लाइटली एसिडिक करना है। न्यूट्रल टू एसिडिक सॉल्यूशन हमने बोला है, एड सम ड्रॉप ऑफ द HCl, तो हम 2 ड्रॉप HCl डालेंगे। तो ये एसिडिफाइड किया हमने। फिर एसिडिफाइड करने के बाद इसमें हमको डालना है टिटैन येलो। क्या डालना है, टिटैन येलो इज द रिएजेंट, वो डालना है। देखिए ये ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है। सो मैग्नीशियम सल्फेट को तो हमने स्लाइटली एसिडिफाइड किया है और इसमें हम डाल रहे हैं टिटैन येलो। विगरस रिएक्शन के साथ वो येलोइश कलर दिखा रहा है। हमको डालना है 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हम डालेंगे। येलोइश प्रेसिपिटेट विथ अ रेडिश कलर दिख रहा है। बॉटम में सम ऑफ द डार्कर रेडिश कलर में आएगा वो। थोड़ा सा टिटैन येलो डालते हैं उसमें। तो इस तरीके से मैग्नीशियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट, येलोइश प्रेसिपिटेट से उसका ऑब्जर्वेशन है, रेड येलोइश प्रेसिपिटेट। ठीक है, क्या क्या किया हमने इसमें, कंपाउंड और मैग्नीशियम सल्फेट को डिसॉल्व किया अच्छे से। देन द सॉल्यूशन विल बी एसिडिफाइड विद द डाइल्यूट HCl और एसिटिक एसिड। देन हम इसमें 2 to 3 ड्रॉप ऑफ क्या डालेंगे, टिटैन येलो डालेंगे, और टिटैन येलो के बाद हमको डालना है 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए बॉटम में थोड़ा रेड कलर दिख रहा है एंड ऊपर येलोइश प्रेसिपिटेट दिख रहा है। तो रेडिश येलो प्रेसिपिटेट उसका लास्ट एंड पॉइंट है। द टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नीशियम सल्फेट। ओके, ये हमने टेस्ट किया था पहले सोडियम बाइकार्बोनेट का, तो एकदम बॉटम में थोड़े से क्रिस्टल बने हैं। तो यहाँ पे वीडियो में पता नहीं ऑब्जर्व होंगे क्या, लेकिन आप जब परफॉर्म करोगे तो आपको दिखेगा छोटे से थोड़े से क्रिस्टल। अगर ज्यादा क्वांटिटी में अगर कंपाउंड लेंगे तो ज्यादा दिखेगा। ठीक है, ये वो हमारा मैग्नीशियम सल्फेट का। और एक लास्ट मैग्नीशियम सल्फेट का टेस्ट है, जिसमें हमको मैग्नीशियम सल्फेट लेना है। मैग्नीशियम सल्फेट को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, क्रिस्टल होने के कारण हम अगेन इसको हीटिंग करेंगे विथ द हीटिंग डिसॉल्विंग द मैग्नीशियम सल्फेट। और इसमें हमको डालना है लीड एसिडेट सॉल्यूशन। देखिए ये जो सॉल्यूशन है सम ऑफ द थोड़ा सा मिल्की है, लेकिन जैसे ही हम लीड एसिडेट डालते हैं देखिए इसमें क्या चेंजेस आते हैं। पूरा टर्बिड मिल्की हो गया है। दैट इज द टेस्ट फॉर द मैग्नीशियम सल्फेट। अगेन वन टेस्ट है जो आप सभी को पता है, जो ऑलरेडी हमने परफॉर्म की है। किसमें की है, सल्फेट लिमिट टेस्ट में। यस, तो मैग्नीशियम सल्फेट में हम क्या क्या लेते हैं, अगर सल्फेट है, सल्फेट लिमिट टेस्ट में क्या करते हैं, सल्फेट विथ अ डाइल्यूट HCl और द एसिटिक एसिड। ठीक है, तो हम अगेन और क्या डालते हैं, बेरियम क्लोराइड, विच फॉर्म ऑफ बेरियम सल्फेट एंड विच इज ऑब्जर्व इन टर्बिडिटी। ये हमारा लिमिट टेस्ट है। तो यहाँ पे भी सल्फेट है,
तो वो टेस्ट पॉजिटिव दिखा सकता है। यस, तो हम क्या करेंगे, अगेन सैंपल को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, देन आप उसको एसिडिफाइड कर सकते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो यहाँ पे मैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 ड्रॉप डालूंगी। सिर्फ मुझे एसिडिफाइड करना है तो। और क्या डालेंगे, बेरियम क्लोराइड। यस, बेरियम क्लोराइड डालेंगे। देखिए ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है, जैसे ही हम बेरियम क्लोराइड डालेंगे क्लाउडी अपीयरेंस आ जाएगा, टर्बिड अपीयरेंस आ जाएगा। दैट इज द टेस्ट फॉर द बेरियम सल्फेट बना रहा है वो, मतलब सल्फेट प्रेजेंट है हमारे सैंपल में, तो वी सैंपल कंटेनिंग द मैग्नीशियम सल्फेट। यस, तो आज के वीडियो में सोडियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट के आइडेंटिफिकेशन देखिए। थैंक यू।